So, good morning, friends. Let us start our session with Unit 2, Indian Contract Act 1872. We are dealing in continuation of Unit 1 only. General contracts are in continuation. So, let us move further with Chapter 7. We have started with Chapter 7 and two important topics we have covered in the previous session. Today, we are going to deal with the third important topic of the same from the same chapter, and the topic is based on write a short note on rules as regards appropriation of payment. Rules as regards appropriation of payment. So let us try to understand a detailed discussion right now we are having in relation with the payment, as and when the person is making payment, what exactly the rules are related with it. That is what is the matter of discussion for today's session. First of all, we will try to understand what exactly is appropriation. What exactly is appropriation? Appropriation is a term which means application of payment. Application of payment, or we can say allocation of payment, or in third sense, it is as same appropriation of payment. Now, who has a right to make the allocation or appropriation of payment? Who has the first right, or we can say primary right? Sir, appropriation of, in case of appropriation of, the primary right is provided to the debtor. Debtor is the first person who is having primary right to make appropriation of payment. Let us try to understand in detail. When a debtor owes several distinct debts to one creditor and makes a payment to the creditor which is insufficient to discharge all the debts, a problem may arise as to which particular debt should the amount or should the payment be applied or allocated or appropriate. सर यहाँ पे बात आ रही है डेटर की, और डेटर ने एक से ज्यादा डेट्स करके रखे हुए हो, यानी एक से ज्यादा लोन लेके रखी है फ्रॉम क्रेडिटर, और जब डेटर क्रेडिटर को पेमेंट करता है, as and when the debtor makes payment to the creditor, whatever the amount has been provided or paid by debtor to the creditor, it is not sufficient to discharge all the debts. Debts may be from or more than one. Debts may be more than one. एक से ज्यादा लोन ली हो तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कौन से पर्टिकुलर लोन अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट की जाए जो डेटर ने पे की है क्रेडिटर। तो इसी के बेस्ड पे रूल्स बनाए गए हैं। ऑन दिस बेसिस ओनली रूल्स हैज बीन फ्रेम्ड टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट कि जो पेमेंट डेटर ने किया है वो पेमेंट कौन से अकाउंट के अंदर या कौन से डेब्ट के अंदर जमा किया जाए, क्रेडिट किया जाए। सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो वही कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए, वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूल्स बनाए हैं। हाउ टू अप्रोप्रिएट द पेमेंट विच इज मेड बाय डेटर द क्रेडिटर in case if the debtor has taken more than one loan from creditor, whether the amount should be deposited means credited in principal amount or it should be credited in interest first. That may be the query, that may be the problems, or in which loan account first to be deposited or credited from. So that problem can be solved with the help of rules which are discussed in this particular topic. There is one case based on the same situation. ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक केस की डिटेल लेते हैं। क्रॉफ्ट वर्सेस लूमली 1858 का केस है। जजमेंट देखते हैं। इट वाज हेल्ड, इट हेल्ड मींस इट इज प्रोवाइडिंग यू जजमेंट। इट वाज हेल्ड दैट the debtor may himself expressly point out to which particular debt the payment to be applied, while in other cases the circumstances may indicate the debt which the payment is to be applied. इस केस के अंदर जजमेंट ये आया कि सबसे पहला अधिकार किसका है। सर सबसे पहला अधिकार डेटर का है। किस चीज का अधिकार? सर जब वो पेमेंट करता है ही हैज अ राइट to provide instruction to the creditor
that you are supposed to credit this amount in this particular loan account. यानी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट कि आपने लोन अकाउंट जो हमारा फर्स्ट लोन अकाउंट है आप उसमें जमा लेना है, क्रेडिट करना है, या सेकंड लोन अकाउंट उसमें जमा लेना है। ये इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार सबसे पहले डेटर को दिया गया। डेटर हैज द फर्स्ट राइट टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, उसकी प्राइमरी राइट। चलिए ये अगर वो इंस्ट्रक्शन दे देता है तो खुद जब पेमेंट कर रहा है तब सर्कमस्टेंसेस में इंडिकेट, अगर वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है तो सर्कमस्टेंसेस यानी केसेस की सिचुएशन देख के भी पता लगाया जा सकता है कि उसने जो पेमेंट दिया है, डेटर ने जो पेमेंट दिया है, क्रेडिटर ने कौन से अकाउंट में जमा लेना है। सर्कमस्टेंसेस के ऊपर भी हम डिसाइड कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से भी। मान लीजिए पहले लोन का अकाउंट का रकम 10,000 है और बंदे ने 10,000 पे किया है, तो वहां से पता चल जा रहा है 10,000 शुड बी डिपॉजिटेड इन द फर्स्ट अकाउंट। दूसरे और तीसरे में रकम अलग अलग होगी, मान लीजिए दूसरे में 20,000 है, तीसरे में 30,000 है और पेमेंट 10,000 का किया गया है और जो पहला अकाउंट है वो ड्यू हो चुका है, तो उसी में अमाउंट डिपॉजिट कर लेनी चाहिए। उसे कहते हैं इम्प्लाइड इंडिकेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लाइड इंडिकेशन। अमाउंट जो डिपॉजिट की गई है, दी गई है, उसको उस अमाउंट पे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि 10,000 पहले अकाउंट की रकम है तो शायद उसी के दिए हैं और वो ड्यू भी हो चुका है, अगली तो ड्यू भी नहीं हुई, तो चलो इसी में डिपॉजिट ले लेते हैं। ये इम्प्लाइड इंडिकेशन, यहाँ बोला नहीं गया, एक्सप्रेस नहीं किया गया, लेकिन हम देख के पता लगा सकते हैं। बट द डिफिकल्टी arises when neither there is an express indication nor can it be implied from circumstance। मैंने जो अभी कहा एक्सप्रेस इंडिकेशन से यानी बंदे ने बोल दिया है तो पहले लोन अकाउंट में जमा कर दीजिए। इम्प्लाइड इंडिकेशन का मतलब क्या है? अमाउंट जो आप दे रहे हैं और आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, लेकिन सिचुएशन से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो 10,000 दिए हैं वो पहले अकाउंट में जमा हो। सिचुएशन से हम ये आइडिया लगा सकते हैं। रूल्स रिगार्डिंग सच पेमेंट्स आर नोन एज रूल्स रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन। अब हम इसी रूल्स की आगे चर्चा करेंगे, लेकिन रूल्स में एंटर होने से पहले इसके 3 अजम्पशंस हैं, वो वन बाय वन पहले समझ लेते हैं। ये 3 अजम्पशंस मैंने क्रिएट किए हैं कि आपको ये टॉपिक इजी लगे। ये 3 अजम्पशंस अगर आप माइंड में रख लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टॉपिक, फॉलोइंग 3 रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स। चलिए पहला अजम्पशन देखते हैं। ये अजम्पशन का सीधा सीधा रिलेशन रूल्स रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के साथ। ये रूल्स देखने की आपको कब ज़रूरत पड़ेगी? ये 3 सिचुएशन साथ में क्रिएट होगी तभी आपको ये रूल्स फॉलो करने, नहीं तो ये रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं। द ट्रांजेक्शन इज अमॉन्ग वन डेटर एंड वन क्रेडिटर। एक ही डेटर है और एक ही क्रेडिटर है, तभी ये रूल्स देखने की संभावना हो सकती है, फॉलो करने की संभावना हो सकती है, तो देखने की जरूरत है। एक ही डेटर ने एक ही क्रेडिटर से एक से ज्यादा लोन ली हो। दूसरी सिचुएशन, व्हेन अ डेटर owes several distinct debts to a creditor, means more than one debt, यानी एक ही डेटर ने एक ही क्रेडिटर से एक से ज्यादा लोन ली हो। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से मान लीजिए 3 लोन लेके रखे। देयर आर मोर देन वन डेब्ट्स, दैट इज कॉल्ड सेवरल डिस्टिंक्ट डेब्ट्स। एक से ज्यादा डेब्ट आपने क्रिएट की हो, एक से ज्यादा लोन आपने ली। तीसरी और इम्पोर्टेंट शर्त ये है, द डेब्ट मस्ट बी ड्यू। जो हम अप्रोप्रिएशन करने की बात कर रहे हैं, हम अप्रोप्रिएशन उसी अकाउंट के अंदर कर सकते हैं जो लोन आपने ली है, जो डेब्ट क्रिएट किया गया है वो ड्यू होना चाहिए, उसकी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी हम उसको अप्रोप्रिएशन के अंदर कंसीडर करेंगे, तो हम नहीं कंसीडर कर सकते। तो पहली सिचुएशन फिर से, एक डेटर एक क्रेडिटर होना चाहिए, एक से ज़्यादा लोन हो सकती है, एक से ज़्यादा डेब्ट हो सकती है, एक ही डेटर ने एक ही क्रेडिटर से एक से ज़्यादा लोन ली हो, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। वही हमको ये रूल्स देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तभी ये रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है। और जो डेब्ट हमने पे करना है, जो लोन हमने पे करना है सर, वो ड्यू होना चाहिए। In India, the rules regarding appropriation of payment are given in section 59 to 61 Indian contract। तो अब जो हम चर्चा करने वाले हैं सर रूल्स की, इट इज हैविंग रिलेशन विद द सेक्शंस 59 टू 61, यानी ये रूल्स इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जो एक लैंडमार्क केस पे बेस्ड है। क्लेटन्स केस 1816 का केस है, उसी केसेस के बेसिस पे ये रूल्स फ्रेम किए गए थे और इसी रूल्स को हमें फॉलो करना है सर।
So the rules regarding the appropriation of payment, the rules regarding the appropriation of payment, let us have its discussion. रूल नंबर 1 पे चलते हैं सर. डेटर्स राइट टू अप्रोप्रिएट. डेटर्स राइट टू अप्रोप्रिएट, सेक्शन 59. ये पहला अधिकार है. अधिकार किसका है सर? डेटर को अधिकार मिलता है सबसे पहले कि वो डिसाइड करेगा कि कौन से अकाउंट के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करना है. तो डेटर हैज द प्राइमरी राइट to inform his creditor to which particular debt the payment is to be appropriated, and if the creditor accepts the payment, his duty is bound to follow the instruction, or we can say intimation of data related to that. सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे. इफ द डेटर एक्सप्रेसली इन्फॉर्म्स द क्रेडिटर about the appropriation of payment to a particular debt, the creditor must do accordingly. तो डेटर की सबसे पहला अधिकार किससे मिलता है? जब भी डेटर कोई पेमेंट कर रहा है, लोन की पेमेंट कर रहा है, रीपेमेंट कर रहा है, तो सर डेटर का पहला अधिकार है. डेटर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किसको करना है सर? क्रेडिटर को फॉलो. डेटर कहता है कि मेरा जो पहला लोन अकाउंट है उसमें आपने 15,000 डिपॉजिट करना है, तो उस इंस्ट्रक्शन का पालन क्रेडिटर को करना पड़ेगा. ठीक है. सो डेटर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वाइल मेकिंग पेमेंट, लोन की रकम जब वो पे करता है, जब जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस इंस्ट्रक्शन का पूरा पालन करने की जिम्मेदारी क्रेडिटर की है. उसे उसी तरीके से जो रकम दी गई है उसी रकम को उसी अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना है अकॉर्डिंगली एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डेटर. यानी जो लक्ष्मी प्रोवाइड कर रहा है, जो लक्ष्मी दे रहा है, उसकी प्राइमरी राइट है. जो रीपेमेंट कर रहा है उसकी प्राइमरी राइट है, ही कैन मेक अप्रोच. But if there is no express intimation by the debtor, then the intention should be seen from the circumstances of the case with the money accepted by the creditor implied. कोई इंस्ट्रक्शन देना अगर डेटर भूल जाता है तो सिचुएशन, जैसे हमने आगे चर्चा की, सिचुएशन के बेसिस पे हमें क्रेडिटर को देखना चाहिए कि कौन से लोन अकाउंट के अंदर ये रकम ज़्यादा सूट कर रही है, कहाँ बैठ रही है. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में, वैसे 10,000 दिया है और 10,000 पहली अकाउंट के अंदर ड्यू हो चुकी है, तो उसमें आपने डिपॉजिट क्रेडिट कर देना एज अ क्रेडिटर. क्रेडिटर की ड्यूटी वहाँ पर. एक एग्जांपल, दो एग्जांपल रखते हैं टू मेक इट मोर सिंपल फॉर यू. द एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज बेस्ड ऑन इम्प्लाइड अप्रोप्रिएशन. जो अभी मैंने वैसे थोड़ी देर पहले 10,000 वाला जो उदाहरण दिया था उसी के बेसिस पे है. देख लेते हैं. एजे ओव्स. ओव्स मीन्स का ओव्स का मीनिंग क्या होता है सर? एजे ओव्स डीजे. तो ओव्स का मीनिंग डिक्शनरी खोलनी पड़ती है. तो एजे ओव्स मीन्स हैव अ लोन फ्रॉम, यानी एजे ने लोन ली हुई है डीजे के पास. अमॉन्ग अदर डेट्स, यानी एक से ज्यादा लोन है, एक से ज्यादा लोन ली हुई है. एक ही डेटर ने एक ही क्रेडिटर से एक से ज्यादा लोन लेकर एक करता વધારે દેવું છે એમ કહેવાય. तो जो लोन की बात यहाँ हो रही है, ऐसी बहुत सारी लोन लेके रखिए. मान लीजिए 3 लोन ली हुई है, उसमें से एक लोन की बात हो रही है जिसकी रकम 11,000 है, ₹11,000 अपॉन अ प्रॉमिसरी नोट विच फॉल्स ड्यू ऑन 12th जुलाई. तो एक से ज्यादा लोन है और एक लोन की बात हो रही है यहाँ पे 11,000 की, जो प्रॉमिसरी नोट लिखने के बेसिस पे, प्रॉमिसरी नोट के बेसिस पे क्रिएट की गई है और 12 जुलाई को वो ड्यू हो रही है. ड्यू डेट, द डेब्ट मस्ट बी ड्यू. दूसरा एजम्पशन हमने देखा. ही ओव्स डीजे नो अदर डेब्ट ऑफ दैट अमाउंट. यानी 11,000 की और लोन की रकम नहीं. मान लीजिए पहला लोन 11,000 है, दूसरा 22,000 है, तीसरा 33,000 और 11,000 का पहला लोन 12 जुलाई को ड्यू हो रहा है. ये सिचुएशन. और इस रकम की और कोई लोन नहीं, अलग अलग रकम की है, ये रकम की नहीं. ये रकम की एक ही लोन. ऑन 12th जुलाई एजे पेज टू डीजे ₹11,000. 12 जुलाई को 11,000 का पेमेंट हो जाता है उसी डेट पे. उतनी ही अमाउंट, ज्यादा नहीं है कम नहीं है, डेट भी सेम, ड्यू डेट. द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ द प्रोमिसर. 11,000 का लोन अकाउंट है, उसके सामने इसको क्रेडिट कर देना है. इम्प्लाइड, इम्प्लाइड के ऊपर इम्प्लाइड बेसिस पे अप्रोप्रिएशन. ठीक है.
मान लीजिए 11,000 दिए तो 11,000 का ही ड्यू हुआ है, तो 11,000 के सामने ही हमें क्रेडिट इम्प्लाइड है, यहाँ बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगला लोन 22,000 का है, तीसरा लोन 33,000 का है, 22,000 का लोन मान लीजिए 1 अगस्त को ड्यू हो रहा है, 33,000 का मान लीजिए 1 सितंबर को ड्यू हो रहा है, तो उसमें तो वैसे भी जमा नहीं हुआ, ड्यू ही नहीं हुआ, तो डेट मस्ट बी ड्यू। तो सिचुएशन के हिसाब से समझ में आ जाता है, इंस्ट्रक्शन देना भूल जाते हैं, इंटीमेशन देना भूल जाते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि अकाउंट के अंदर ये जमा नहीं हुआ। ये इम्प्लाइड की बात हुई, एक्सप्रेस में तो क्या है सर, बोल देना है, सिंपल है। सिमिलरली एक्स ओव्स वाई among other debts a sum of rupees 800, वैसी सिचुएशन एक्स ने वाई को एक से ज्यादा डेप्ट लेके रखी है, एक से ज्यादा लोन लेके रखी है, और 800 रुपए की एक लोन है। पहली लोन 800 की है मान लीजिए, दूसरी लोन 2,000 की, तीसरी लोन 5,000 की। एक्स राइट्स टू सॉरी वाई राइट्स टू एक्स एंड डिमांड्स पेमेंट ऑफ दिस। वाई यानी क्रेडिटर, वाई कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर ने एक्स को यानी डेटर को एक पत्र लिखा और डिमांड करता, भाई 800 ड्यू हो चुका है, वो मुझे आप जमा करवा दें। एक्स सेंड्स वाई रुपीज 800, एक्स ने 800 भेज दिए। दिस पेमेंट इज टू बी अप्रोप्रिएटेड टू द डिस्चार्ज ऑफ द डेट व्हिच वाई हैड डिमांडेड। अब जो डिमांड किया है वही पे किया है, तो उसी में जमा करना है, सिंपल है। एक्सप्रेसली है, जैसा मांगा गया है वैसा ही भेजा गया है, और वैसे ही आपने डिपॉजिट लेना, जमा करना, क्रेडिट करना। इसी रूल को और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर ड्यू, व्हेन बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर ड्यू, the debtor can stipulate that a particular payment made by him is to be appropriated to the principal and the interest remaining. If the creditor does not want to apply the payment as per the instruction of the debtor, he must refuse to accept the payment. अब जब डेटर कोई पेमेंट करता है विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम और कोई इंस्ट्रक्शन देता है, तो उस इंस्ट्रक्शन का पालन। अगर डेटर कहता है कि जो मैं रकम डिपॉजिट कर रहा हूँ वो आपने सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट में डिपॉजिट करनी है, तो क्रेडिटर की ड्यूटी बन जाती है कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट में पहले डिपॉजिट कर क्रेडिट कर। इंटरेस्ट इंटरेस्ट भले बाद, इंटरेस्ट भले वो भी ड्यू हो चुका है, लेकिन अगर डेटर ने कहा है कि पहला मूल रकम में जमा ले जाओ, then the creditor is supposed to follow that instruction. अगर क्रेडिटर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना चाहता है, देन ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द पेमेंट, ही मस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, फिर उसे वो पेमेंट का एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहिए। अगर वो इस इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करना चाहता है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, तो उसे रिफ्यूज कर देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि डेटर ने बाद में लोन की रकम कभी भी पे नहीं करनी है, रिफ्यूज कर दिया तो। In no case the creditor can alter or change the appropriation after acceptance. अगर आपने एज अ क्रेडिटर एक्सेप्टेंस कर लिया है किसी पेमेंट का, तो उस जो इंस्ट्रक्शन डेटर ने दी है उसी इंस्ट्रक्शन का पालन करना, वही एक्सेप्टेंस करना है। आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो मीन्स आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डेटर की फॉलो कर रहे हो, जो भी इंस्ट्रक्शन डेटर ने दिया आप उसको फॉलो करना चाहते हो, इसलिए तो आपने एक्सेप्टेंस किया है पेमेंट का, नहीं तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं करना एज अ क्रेडिटर। If the debtor does not stipulate money paid and received without any definite appropriation is to be first applied in payment. अगर डेटर ने कोई सूचना नहीं दी है पेमेंट देते वक्त, तो क्रेडिटर क्या करेगा सर, क्रेडिटर तो सर पहले इंटरेस्ट नहीं जमा लेगा ना सर, वो उसके बेनिफिट में है। क्रेडिटर को तो क्या अच्छा लगेगा सर, वो अपना बेनिफिट किस सेंस में देखेगा सर, आप किसी को लोन दे रहे हो तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा सर, इंटरेस्ट। फ्री में थोड़ी ना कोई लोन दे देगा सर, रिलेटिव है तो बात अलग है, लेकिन ब्याज की बात आती है, तो क्रेडिटर को जो सबसे प्यारा होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट। और डेटर क्या करने की कोशिश करेगा कि उसका जितना लायबिलिटी इन सेंस ऑफ इंटरेस्ट कम हो वो वैसा सोचेगा, इसलिए वो कहाँ डिपॉजिट करने को बोलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट। और क्रेडिटर क्या सोचेगा कि पहले ब्याज में जमा हो फिर प्रिंसिपल में जमा हो, तो दोनों अपना अपना फायदा देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन लॉ किसके फेवर में जजमेंट दे रहा है, पहला अधिकार किसका है, डेटर को। डेटर को पहला राइट मिला है कि सर आप डिसाइड करो आपको कौन से अकाउंट में आपकी रकम जमा लेनी है, और क्या पहले प्रिंसिपल में लेनी है इंटरेस्ट में लेनी है, आप डिसाइड करो।
लॉ पहला अधिकार प्राइमरी राइट किसको दे रहा है सर? डेटर। अगर डेटर ने अपना ये राइट का उपयोग नहीं किया तो क्रेडिटर की बल्ले बल्ले। तो रूल 2 किसके फेवर में जाएगा सर? अगर डेटर इंस्ट्रक्शन देना भूल गया है तो क्रेडिटर अपनी मनमानी करेगा। रूल 2 इज इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर्स राइट टू अप्रोप्रिएट। अब क्रेडिटर डिसाइड करेगा, अगर डेटर सूचना देने को भूल गया है, इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, तो क्रेडिटर अपनी मनमानी करेगा। और क्रेडिटर सबसे पहले किसमें जमा करेगा, किसमें क्रेडिट करेगा, वो आपको समझ में आ गया सर। वो सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट में ही, इंटरेस्ट जो ड्यू हो चुका है पहले उसी में क्रेडिट करेगा सर। वो अपना फायदा देखेगा। इफ while making the payment the debtor does not inform and there are no circumstances indicating to which date the payment is to be applied, then the creditor has the right, or we can say the option, to apply the payment to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor. तो अगर डेटर इंस्ट्रक्शन देना भूल जाता है और कोई सर्कमस्टेंसेस भी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन से भी समझ में नहीं आ रहा हो या पता नहीं लग रहा है कि ये अमाउंट कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाए, तो क्रेडिटर अपने हिसाब से जो भी लॉफुल डेप्ट है, जो ड्यू हो चुका है और जो डेटर से ही लेने हैं, उसके कोई भी एक अकाउंट के अंदर वो डिपॉजिट अपने हिसाब से कर सकता है। और डेटर ज़्यादातर किसमें फोकस करेगा? पहले वो इंटरेस्ट अमाउंट में ही क्रेडिट करने का सोचेगा। इंटरेस्ट अमाउंट तो सोचिए, ये तो ऑर्डिनरी डेप्ट है। अगर डेप्ट टाइम बेयर्ड हो, टाइम बेयर्ड, in such a case even the payment can be applied to a debt which has become time bound। दो प्रकार के डेट होते हैं। अब डेप्ट पे चलते हैं। डेप्ट भी दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी डेप्ट होता है और दूसरा होता है टाइम बेयर डेप्ट। ऑर्डिनरी डेप्ट मीन्स जिसको 3 साल से कम का समय हुआ, मीन्स 3 साल नहीं कंप्लीट हुए उस डेप्ट को, मैच्योरिटी डेट से 3 साल तक वो ऑर्डिनरी डेप्ट माना जाएगा। जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट से 3 साल कंप्लीट हो गए, तो वो डेप्ट टाइम बेयर डेप्ट माना, एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से चर्चा की। तो ऑर्डिनरी डेब्ट में तो जो ड्यू हो चुका है उसमें तो क्रेडिटर क्रेडिट कर ही सकता है, साथ साथ में टाइम बेयर डेब्ट में भी वो मनमानी कर सकता है अगर डेटर ने सूचना नहीं। तो टाइम बेयर डेब्ट को क्रेडिटर कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बेयर्ड हो चुका है। मुद्दत બહારનું દેવું અદાલત થકી ક્યારે આપણે વસૂલ કરી શકીએ? એ टाइम बेयर, वो टाइम बेयर्ड हो चुका है, 3 साल से ज्यादा हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है वो डेप्ट। हम उसकी रिकवरी लीगली नहीं कर सकते। हम कौन से डेप्ट की रिकवरी कर सकते हैं? ओनली ऑर्डिनरी डेप्ट। जनरल डेप्ट की हम रिकवरी कर सकते हैं, करना चाहें तो उसका हमें ध्यान रखना है। ऑर्डिनरी डेप्ट का मतलब क्या है सर? जिसका 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हम रिकवर कर सकते हैं कोर्ट में चैलेंज करके। तो हियर ये समझ में आ जाना चाहिए पहले ऑर्डिनरी डेप्ट क्या है और टाइम बेयर डेप्ट क्या है। तो इवन अगर डेटर ने डिपॉजिट करते वक्त, जमा रकम देते वक्त अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, तो क्रेडिटर तो बल्कि ऑर्डिनरी डेब्ट तो क्या, पहले टाइम बेयर डेब्ट में वो डिपॉजिट कर लेगा। જે દેવું મુદ્દત બહારનું થઈ ગયું છે उसमें वो डिपॉजिट पहले करेगा, क्यों नहीं करे? वैसा डेब्ट है जो कभी रिकवर नहीं हो सकता है। लेकिन इस तरीके से अगर डेटर की गलती हो गई, उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो क्रेडिटर की बल्ले बल्ले है। इसीलिए बल्ले बल्ले कि कोई पुराना डेप्ट भी अगर पड़ा है बुक बुक में और हम और डेटर ने रीपे नहीं किया है, तो वो यहाँ पे उसका बेनिफिट ले सकता है पूरा पूरा, एज पर रूल्स, एज पर लॉ। तो ये सेकेंड रूल, इट इज इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। इवन इन केस ऑफ टाइम बेयर डेप्ट, creditor can credit such amount if it is paid without instruction by debtor। और उसमें भी वो सबसे पहले क्या करेगा सर? इंटरेस्ट अमाउंट में रकम क्रेडिट करेगा, और अगर कोई रकम बचती है तो प्रिंसिपल वाली अमाउंट में वो क्रेडिट करेगा। लेकिन एक बात का क्रेडिटर को खास ध्यान रखना है, बट वंस an appropriation has been made by the creditor, the debtor is informed, the debtor is informed and the creditor cannot change his option later। एक बार आपने अमाउंट क्रेडिट कर दी, जमा ले ली क्रेडिटर ने और डेटर को इन्फॉर्म कर दी, तो उसके बाद उसमें फ्यूचर में कभी कोई अल्ट्रेशन, कोई चेंजेस
क्रेडिटर कर नहीं सकता है, इसलिए सोच समझ के क्रेडिट करना होगा क्रेडिटर को भी। क्रेडिटर उसमें अपना हित पहले देखेगा। In other words, the creditor may also, until he has declared appropriation to the debtor, can change the appropriation. Change एक ही circumstances में creditor change कर सकता है, जब तक creditor ने debtor को inform नहीं, तब तक अंदर चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्रेडिटर ने डेटर को इन्फॉर्म कर दिया कि आपने जो 20,000 की रकम आज मुझे दी थी, वो मैंने यहाँ पे टाइम बेयर डेप्ट में जमा ले ली है, पुराने वाले लोन अकाउंट में जमा ले ली, या पहले दूसरे वाले लोन अकाउंट में जमा ले ली, ये इंस्ट्रक्शन एक बार दे दी डेटर को, उसके बाद अंदर आप कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते एज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर ने सोच समझ के स्टेप लेना है। रूल 3, आखिरी रूल पे चलते हैं, वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। सेक्शन 61 के हिसाब से ये रूल क्रिएट किया गया है। वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, यानी यहाँ पे ना ही डेटर ने कुछ बोला है, ना ही क्रेडिटर ने कुछ सुना है। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके एक काम कर रहे हैं, यूं समझ। वेयर नाइदर द डेटर नॉट द क्रेडिटर मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन, यानी अप्रोप्रिएशन की घटना हुई नहीं। डेटर ने पेमेंट किया लेकिन सूचना नहीं दी, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो उस सेंस में क्रेडिटर क्या करेगा? सर क्रेडिटर भी कंफ्यूज हो गया कि कौन से लोन अकाउंट में मैं ये अमाउंट क्रेडिट करूं। दैट इज द सिचुएशन क्रिएटेड। इसीलिए तो रूल्स बनाए गए हैं। इफ यू हैव कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन सच सर्कमस्टेंसेस बाय फॉलोइंग सेक्शन 61 स्पेशली। तो वहां पे किस सेंस में अकाउंट को क्रेडिट करना है सर? क्रेडिटर किस अकाउंट में जाके उस अमाउंट को क्रेडिट करेगा, जमा करेगा, वो समझने की जरूरत है। द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेब्ट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, वेदर और नॉट दे आर टाइम वेर। यहाँ पे समय के क्रम के हिसाब से डेट्स होगी, ड्यू डेट्स, उस ड्यू डेट्स को ध्यान में लेके हमने, यानी कि क्रेडिटर ने उस अमाउंट को क्रेडिट करनी है उस अकाउंट के अंदर। उसमें भी अगर कोई पहले का टाइम बेयर डेप्ट है, पुराना डेप्ट है, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ लीगल एक्शन, उसमें वो क्रेडिट कर सकता है। इससे बढ़िया चीज क्रेडिटर के लिए क्या होगी सर? इसलिए डेटर को खास याद रखना है कि जब वो पेमेंट कर रहा है, ही मस्ट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, प्ले अ सेफ गेम। अगर उसे अपने फेवर में डिसीजन इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, तो फिर क्रेडिटर अपनी मीन्स अपने हिसाब से उस रकम को क्रेडिट कर सकता है। इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, मीन्स सभी डेट्स की डेट सेम हो, ऐसा भी हो सकता है एक ही डेट्स की 3 लोन हो या 2 लोन हो, तो वहां पे अप्रोप्रिएशन कैसे होगा? अमाउंट कैसे क्रेडिट की जाए, क्या बेसिस होगा? पेमेंट शेल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रपोर्शनेटली, यानी वहां पे प्रपोर्शनेटली रकम जमा लें, प्रपोर्शन के हिसाब से रकम जमा लें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्योंकि इक्वल डेट से सबकी। It is a general rule that where the money received by the creditor without any definite appropriation on either side, money so received must first be applied in payment of interest and then in payment of fees. अगर डेटर ने कोई सूचना नहीं दी है तो सबसे पहले अमाउंट कहाँ जमा करनी है सर क्रेडिटर ने? सर इंटरेस्ट की जो अमाउंट ड्यू हो चुकी है उसमें क्रेडिट करने की राइट क्रेडिटर को मिल जाती है, और बाद में जो अगर कोई शेष रकम बचती है, एक्स्ट्रा अमाउंट बचती है, रिमेनिंग अमाउंट जो बचती है इंटरेस्ट में क्रेडिट करने के बाद, रिमेनिंग अमाउंट प्रिंसिपल रकम में, प्रिंसिपल अमाउंट में जमा कर। तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा, उसका कंक्लूजन है, 3 रूल्स हमने समझे, वो फिर से शॉर्ट में समझते हैं। Thus, the debtor has the first right to intimate about the appropriation of the debt at the time of payment. पहला अधिकार किसका है सर? डेटर का पहला अधिकार इंस्ट्रक्शन देने का। उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्रेडिटर ने एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कर। अगर वो सूचना देना भूल जाता है, इफ ही फेल्स टू एक्सरसाइज हिज राइट, तो सेकेंडरी राइट किसकी हो जाती है सर? देन द राइट पासेस टू द क्रेडिटर। आपने अपना अधिकार दूसरे को दे दिया तो वो तो अपनी मनमानी करेगा, क्रेडिटर तो अपनी मनमानी करेगा। इफ द क्रेडिटर ऑल्सो फेल्स टू एक्सरसाइज हिज राइट, अब क्रेडिटर भी कंफ्यूज हो चुका हो,
मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे उस सिचुएशन में द एप्रोप्रिएशन विल बी डन इन ऑर्डर ऑफ टाइम, समय के क्रम के अनुसार अमाउंट डिपॉजिट करनी होगी, क्रेडिट करनी। इन केस इफ द डेट आर ऑफ सेम डेट्स, अगर सेम डेट्स होंगी, एक ही डेट्स को एक से ज्यादा लोन ली हो एक ही क्रेडिटर के पास से एक ही डेटर ने, तो वहाँ प्रपोर्शनेटली अमाउंट जमा ली जाएगी। थोड़ा और डिटेल में विथ एग्जांपल में कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, क्योंकि ऐसा इलस्ट्रेशन कोई बुक में नहीं। एक टेबल बनाया मैंने कि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन हो, एक ही डेटर है एक ही क्रेडिटर है, एक ही डेटर ने एक ही क्रेडिटर से एक से ज्यादा लोन ली हुई है। यहाँ पे चार चार लोन दिख रही है मुझे, सबकी ड्यू डेट्स अलग अलग है, सबकी ड्यू डेट्स भी अलग अलग है। उस सिचुएशन में अमाउंट कैसे क्रेडिट की जाएगी, रूल्स के हिसाब से चलना होगा फ्रेंड्स। तो लेट अस ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड ड्यू डेट्स क्या दी हुई है। तो आप देख सकते हैं चार चार ड्यू डेट है, जो लोन ली है वो पक चुकी है, मैच्योर्ड हो चुकी है। तो पहली देखिए 1117, दूसरे में 1120, 1420 और चौथे में 17। नेचर ऑफ डेट भी यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। पहला जो डेट है वो सर टाइम बेयर डेट है, इसकी उम्र हो चुकी है, डेट एक्सपायर हो चुका है, इसको 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। ड्यू डेट क्या है 1117, तो ये डेट कब मैच्योर हो गया है 1117। ये टाइम बेयर कब हो जाएगा 3 साल के बाद। 3 साल कब खत्म होंगे इसके 31/12/2019 को ये डेब्ट टाइम बेयर हो गया, यानी हम कोर्ट में जाके केस करके इसको रिकवर नहीं कर सकते। आपने बहुत देर कर दी है इसकी रिकवरी के लिए। आपने अगर केस करना ही था तो 3 साल के अंदर करके रिकवरी करनी चाहिए थी, आपने बहुत देर कर दी। इसे टाइम बेयर डेब्ट कहते हैं। ऑर्डिनरी डेब्ट यानी जिसको 3 साल से कम का समय हुआ हो, एक एक 20, यानी आज की डेट के हिसाब से ये अभी टाइम बेयर्ड नहीं हुआ है, ये भी टाइम, इन सबको 3 साल नहीं कंप्लीट हुए ड्यू डेट के बाद, तो ये तीनों तीन डेट्स ऑर्डिनरी डेट्स। तो अब आगे समझते हैं। मान लीजिए एक डेटर ने क्रेडिटर को 20,000 रुपये दिए हैं और उसने कोई सूचना नहीं दी है, 20,000 डिपॉजिट किए हैं और कोई सूचना नहीं दी। इसको किस तरीके से, इसकी एंट्री किस तरीके से दिखाई जा सकती है, हाउ द एंट्री विल बी शोन। मान लीजिए 20,000 रुपीज दिए हैं और कोई सूचना नहीं दी है, ना डेटर ने कुछ कहा ना क्रेडिटर ने कुछ किया, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले जनरल रूल क्या कहता है, जनरल रूल ये कहता है सबसे पहले टाइम बेयर डेप्ट में हम डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। जब बाहर ना देवानी अंदर पण जमा लेवाई सौखी पहला। तो ये हम रिकवर कर सकते हैं इस तरीके से। तो उसमें भी यहाँ प्रिंसिपल नहीं आएगा फ्रेंड्स, प्रिंसिपल अमाउंट मूल रकम के लेके 30,000 की लोन ली, 30,000 की लोन ली, इसका ब्याज कितना और तो 10,000 हो चुका है आपका। तो 20,000 की अगर रकम दी गई है तो एज पर डेट, डेट के हिसाब से चले, ऑर्डर ऑफ डेट के हिसाब से। तो ये 1/1/17 वाला पहला लोन है। तो 20,000 की अगर डिपॉजिट की गई है तो मैं सबसे पहले एज अ क्रेडिटर क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं पहले ये 10,000 का जो इंटरेस्ट है उसको मैं उसमें मैं क्रेडिट कर लूँगा। रिमेनिंग 10,000 जो है मैं इसके अंदर माइनस कर, यानी 10,000 यहाँ से चला जाएगा, ब्याज ज़ीरो हो जाएगा। रिमेनिंग टाइम डेट अब बचेगा 20,000। अगर मान लीजिए 44,000 का अमाउंट दिया गया होता, 44,000, तो मैं सबसे पहले क्या करता एज अ क्रेडिटर, कोई इंस्ट्रक्शन डेटर ने नहीं दी हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ एज अ क्रेडिटर। तो मैं सबसे पहले ये 10,000 के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करूँगा, इंटरेस्ट ज़ीरो हो जाएगा। रिमेनिंग 34 बचेंगे, तो 34 के हिसाब से मैं ये 30 में यहाँ जमा कर लूँगा। तो ये मेरा लोन अकाउंट में क्लोज कर लूँगा। मैं पहले यही रिकवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इसको रिकवर लीगली नहीं कर सकता। पहले 40 आ जाएंगे एज अ क्रेडिटर, अब 44 में से 40 की एंट्री हो गई, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। रिमेनिंग 4,000 में मैं किस में जमा करूँगा सर, एज पर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ डेट। पहले 1120 आ रहा है, 4,000 जो बच रहे हैं मैं सर इंटरेस्ट में जमा कर लूँ। पहले मैं इंटरेस्ट में ही जमा करूंगा, क्रेडिटर को तो प्रिय क्या है सर, इस तरीके से अप्रोप्रिएशन होगा सर। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था।
दूसरा उदाहरण लेते हैं सर। दूसरे उदाहरण में अब आप देख सकते हैं 3 लोन अकाउंट है। कितने लोन अकाउंट है? पहले में 4 लोन अकाउंट है, इसमें 3 लोन अकाउंट है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है? तीनों तीन की डेट सेम है। एक ही दिन को 3 प्रकार के जो लोन है वो ड्यू हो रहे हैं और तीनों तीन ऑर्डिनरी डेब्ट है। एक ही डेट को अगर एक साथ कोई 3 लोन ली हुई थी, एक ही डेट को अगर मैच्योर हो रही है, ड्यू हो रही है, तो वहाँ एप्रोप्रिएशन कैसे किया जाएगा? If all the debts are of equal standing, how the appropriation can be made by creditor as per section 61 if no instruction is provided by debtor while making payment to creditor? उस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? मान लीजिए रकम डिपॉजिट की गई है 33,000 रुपये। कितने? 33,000 रुपये। तो मैं क्या करूंगा सर? तीनों तीन में 11,000 डिपॉजिट करूँ। ऑल द 3 अकाउंट्स में मैं कितना क्रेडिट लूंगा? इक्वल अमाउंट शेयरिंग हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट। 11,11,11। इस तरीके से मैं अकाउंट में ये रकम जमा 11,11,11 जो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ उसमें भी तीनों तीन में मैं पहले ब्याज वसूल करूंगा एज अ क्रेडिटर। तो यहाँ 11 में डिपॉजिट करूंगा तो 4 यहाँ से माइनस करूंगा, 11 में से 4 गए तो 7, 7 में कहाँ से? 40 में से माइनस। अब ऑर्डिनरी डेब्ट कितना बचेगा? यहाँ 33,000 बचेगा, 33,000। सेम वे यहाँ जो मैं 11,000 लूंगा वो यहाँ से 5,000 माइनस करूंगा, रिमेनिंग 6,000 में प्रिंसिपल अमाउंट में से यानी 44 बचेगा। उसी तरीके से 11 यहाँ पे कैसे एंट्री होगी सर? ये 6,000 यहाँ से डिलीट हो जाएंगे यानी कि जमा हो जाएंगे और रिमेनिंग 5,000 में यहाँ से 16 में से। तो इस तरीके से अप्रोप्रिएशन का रूल्स फॉलो किया